بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر بندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح اپنا منہ دکھائیو، میں نے فاتحہ خیر پڑھ کر تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں شامل ہے؟ جی، تو سوال نمبر پہلا کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی پہلے درویش کے قصے میں یہ عبارت شامل ہے۔ یہ عبارت جو ہے باغ و بہار کے پہلے درویش کی جو ہے قصے میں شامل ہے، اور یہ عبارت جو ہے باغ و بہار کے پہلے درویش کی بہن کا اس میں بیان کیا گیا ہے، جو درویش کو اپنے گھر سے رخصت کرتی ہے۔ بات کریں باغ و بہار کے مصنف کے، تو باغ و بہار کے مصنف میر امن ہیں۔ میر امن کی پیدائش جو ہے 1732 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ میر امن نے کل 2 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلا ہے باغ و بہار، جو 1802 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا، اور باغ و بہار 1804 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ دوسرا ان کا ہے گنج خوبی۔ یاد رکھیے گا، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، باغ و بہار 1802 عیسوی میں لکھی اور شائع 1804 عیسوی میں ہوئی، اور دوسرا ان کی کتاب گنج خوبی۔ گنج خوبی کے بارے میں بات کریں، ان کی دوسری تصنیف گنج خوبی، تو کہا جاتا ہے یہ ملا واحد حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا UGC کے مطابق جو ہے گنج خوبی جو ہے وہ اخلاق محسنی کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ تو انوار سہیلی کا۔ یاد رکھیے گا گنج خوبی جو ہے یہ UGC انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے۔ گنج خوبی کو جو ہے UGC انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ گنج خوبی جو ہے ملا واحد حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ یاد رکھیے گا باغ و بہار جو ہے، باغ و بہار یہ میر امن کی تبعات نہیں ہیں، بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ یاد رکھیے گا باغ و بہار جو ہے میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے، اور نو طرز مرصع یہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے، باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے، اور فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی۔ باغ و بہار اردو کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، یہ بتائیے گا یہ کن کا قول ہے؟ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، باغ و بہار کے تعلق سے یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ساتھیوں، بقول سید عبداللہ یہ سائنٹیفک نقاد ہیں، ان کا قول ہے باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ ایک اور قول ہے، آپ نے بتانا ہے یہ کن کا ہے باغ و بہار کے تعلق سے ہی۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے، ایک ان کا قول ہے۔ جی، تو یاد رکھیے گا 1912 سے 1972 والے کا یہ قول ہے، یعنی سید احتشام حسین صاحب کا۔ سید احتشام حسین کا یہ قول ہے، میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ چلیے جی، اب بات کریں باغ و بہار کے کردار کے بارے میں، تو اس میں مشہور کردار روشن اختر ہے، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شہپال وغیرہ ہیں۔ اس کے اکثر جو ہے باغ و بہار کے قصے سے کردار پوچھے جاتے ہیں کہ کون سے قصے سے کون سا کردار آتا ہے، تو یاد رکھیے گا جو ہے خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار اور یوسف سوداگر، یہ پہلے درویش کے کردار ہیں۔ کون کون؟ خواجہ احمد،
عیسیٰ حجام سیدی بہار یوسف سوداگر۔ خواجہ احمد عیسیٰ حجام سیدی بہار اور یوسف سوداگر پہلے درویش کے کردار ہیں۔ حاتم طائی نوفل بیدار بخت اور بہرور یہ دوسرے درویش کے کردار ہے۔ حاتم طائی نوفل بیدار بخت بہرور، ایسے آپ اسے جوڑ کر یاد رکھیے گا۔ حاتم طائی نوفل بیدار بخت بہرور دوسرے درویش کے کردار ہیں۔ خواجہ سگ پرست بہرہ مند اور وزیر زادی یہ آزاد بخت بادشاہ کے کردار ہیں۔ یاد رکھیے اس میں آزاد بخت بادشاہ کا بھی قصہ ہے جسے پانچواں قصہ بتایا جاتا ہے۔ ویسے تو 4 ہی ہیں لیکن موٹا موٹی دیکھا جائے تو 5 قصہ ہے جس میں آزاد بخت بادشاہ کا قصہ آتا ہے۔ جو خواجہ سگ پرست بہرہ مند اور وزیر زادی کا جو کردار ہے وہ آزاد بخت بادشاہ کے قصے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تیسرے درویش کے کردار میں بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار اور نعمان سیاح آتے ہیں، یہ تیسرے درویش کا کردار ہے۔ اور چوتھے درویش میں روشن اختر، حبشی مبارک، ملک الصادق اور ملک شاہپال۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ درج ذیل میں سے کون سی نظم سرور جہان آبادی کی نہیں ہے؟ عروس حب وطن، یاد طفلی، ہولی یا پھر گنگا؟ جی تو سوال نمبر دوسرا کا صحیح جواب ہو جائے گا ہولی۔ ہولی سرور جہان آبادی کی نظم نہیں ہے بلکہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ اس کے علاوہ عروس حب وطن، یاد طفلی، گنگا یہ سرور جہان آبادی کی نظمیں ہیں لیکن ہولی نہیں ہے۔ ہولی کن کا ہے تو یاد رکھیے گا 1740 سے 1810 والے یعنی نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں۔ چلیے جی بات کریں سرور جہان آبادی کے بارے میں تو سرور جہان آبادی کا اصل نام درگا سہائے تھا۔ یاد رکھیے گا سرور جہان، ان سے اکثر جو ہے زمرے میں جو ہے سوال بن جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا سرور جہان آبادی کو بھولنا نہیں ہے، ان کے پیدائش بھی یاد رکھنا ہے۔ تو سرور جہان آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ درگا سہائے ہے۔ درگا سہائے ان کا اصل نام ہے اور یہ پہلے وحشت تخلص کرتے تھے۔ سرور جہان آبادی یہ پہلے وحشت تخلص کرتے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے سرور تخلص باضابطہ طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پیدائش کب ہوئی ہے دوستو تو یاد رکھیں گے 1873 عیسوی کو پیلی بھیت میں ہوئی۔ 1873 عیسوی کو سرور جہان آبادی کی پیدائش پیلی بھیت میں ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو پیلی بھیتی میں ہوئی ہے۔ ان کے تصانیف سے کبھی کبھی سوال بن جاتے ہیں تو ان کی تصانیف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ جامع سرور، جامع سرور ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے سرور جہان آبادی کا۔ اس کے علاوہ اللہ آباد، خم خانہ سرور، خم کدہ سرور، خون نحق نرنگ قلق، دشنام قلق، نشتر ماتم، نالا خونچ کا، شیون، ہنگامہ محشر۔ ہنگامہ محشر سرور جہان آبادی کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا ناول وصال ہے۔ ان کے شخصی مرثیے کا نام لالا لاجپت رائے کا مرثیہ، سوامی رام تیرتھ، داغ وغیرہ کا مرثیہ انہوں نے ہی لکھا ہے۔ ان کے مشہور نظموں میں یاد طفلی، یاد بچپن، نور جہاں، بیر بہوٹی، نرنگ زمانہ، رویائے اکبر، لکشمی جی، شکوہ سیاد، ایک جیلا وطن، سارس کا جوڑا، مناظر قدرت، یہ سبھی نظموں کو آپ یاد رکھیے گا۔ یہ اکثر جو ہیں ساتھیوں یقین مانیے یہ زمرے میں آتے ہیں تو ان کے نظموں کو آپ یاد رکھتے ہیں نا تو اگر زمرہ میں آ جاتا ہے تو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو ان کے نظمیں ضرور آپ یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر تیسرے کی طرف۔ زیادہ حساس بننے کی کوشش نہ کرو۔ میرے خیال میں جتنے دکھ سہ کر تم ڈھٹائی ہنس سکتی ہو قابل داد ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہادر اور مضبوط ہو، انتہائی بزدل ہو، سوئی کے زخم کو بھالا بنا لیتی ہو۔ یہ بات ناول ٹیڑھی لکیر میں شمن سے کس نے کہی؟ پروفیسر رحمان، اعجاز، کامریڈ یا پھر رشید؟ جی تو سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہو جائے گا یعنی پہلا پروفیسر رحمان۔ ناول ٹیڑھی لکیر کے بارے میں بات کریں تو ناول ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ایک نفسیاتی ناول ہے جسے انہوں نے 1944 عیسوی میں لکھا تھا اور یہ ناول جو ہے 1945 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو 3/43/1945۔ 3/43/1945 سے کیا مطلب ہے تو 3 منازل ہیں، اس میں 3 منازل ہیں
اور 43 کا کیا مطلب ہے؟ تو 43 ابواب ہیں، اس میں 43 ابواب ہیں، اور 343 1945 سے مطلب یہ ہو گیا 45 میں یہ شائع ہوئی ہے۔ اور بات کریں اس کے کردار کے، تو اکثر جو ہے ناول ٹیڑھی لکیر کے کردار سے جو ہے سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ یہاں کردار کو دیکھ سکتے ہیں۔ شمن کا کردار جو ہے اسی ناول یعنی ٹیڑھی لکیر میں آیا ہے، اور یہ بہت ہی مشہور کردار ہے شمن، اسے یاد رکھیے گا۔ پوچھا جاتا ہے اپنے ماں باپ کی یہ 10ویں نمبر کی لڑکی ہوتی ہے، یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے بعض دفعہ جو ہے وہ کتنے نمبر کی لڑکی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا ساتھیوں، شمن جو ہے اپنے ماں باپ کے 10ویں نمبر کی لڑکی ہوتی ہے۔ مس چرن، ان کا بھی کردار بہت ہی مشہور ہے، تو یہ استانی ہوتی ہیں مس چرن۔ رسول، فاطمہ اور نجمہ یہ شمن کی دوست ہوتی ہیں۔ بلقیس یہ بھی دوست ہیں۔ بلقیس کا بھائی رشید جس سے شمن عشق کرنے لگتی ہے۔ رائے صاحب جو ہے یہ پریما کے والد ہیں، جس سے شمن محبت کا اظہار کرتی ہے۔ پریما شمن کی دوست ہے۔ اعجاز سے جو ہے شمن کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ افتخار، روفی ٹیلر جس سے شمن کی شادی ہوتی ہے۔ منجو یہ کردار بھی مشہور ہے، تو منجو یہ شمن کی بہن ہوتی ہے۔ نوری شمن کی بڑی بہن کی بیٹی ہے۔ کندن منجو کی جٹھانی کا بیٹا ہے۔ بلقیس اور جلیس یہ دونوں بہنیں ہیں۔ سیٹل، پروفیسر رحمانی یہ کردار بھی جو ہے ناول ٹیڑھی لکیر میں ہی آئے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ آگ کا دریا کس کردار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ سرل ایشلے، ابو المنصور کمال الدین، گوتم نیلمبر یا پھر ہری شنکر؟ جی تو سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہو جائے گا گوتم نیلمبر۔ آگ کا دریا جو ہے گوتم نیلمبر کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول آگ کا دریا یا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے، اور یہ ناول کب شائع ہوا ساتھیوں؟ تو یاد رکھیں گے 1959 عیسوی میں جو ہے ناول آگ کا دریا شائع ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا آغاز T.S. ایلیٹ کے نظم سے کیا ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس کے نظم سے اخذ کیا ہے انہوں نے اپنے ناول قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول کا آغاز؟ تو یاد رکھیے گا T.S. ایلیٹ کے نظم سے کیا ہے۔ اس کے آغاز جو ہے T.S. ایلیٹ کے نظم سے انہوں نے کیا ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو ناول آگ کا دریا میں جو ہے قرۃ العین حیدر نے شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک استعمال جو ہے انہوں نے اپنے ناول آگ کے دریا میں کی ہے، اور ناول آگ کا دریا جو ہے ٹوٹل جو ہے 4 ادوار میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، اور ہر دور کو جو ہے 4 کہانیوں میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ چلیے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا انہوں نے اپنے ناول آگ کا دریا کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا جس کا نام تھا دی ریور آف فائر۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ اچھا، قرۃ العین حیدر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو نویڈا میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ ناول لندن کی ایک رات میں لیلائے سول سربس کا مجنوں کون ہے؟ احسان، اعظم، عارف یا پھر نعیم؟ جی تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا عارف۔ ناول لندن کی ایک رات کن کی ناول ہے؟ جی تو یہ سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ محمد حسین آزاد، حالی، جوشم علی آبادی یا پھر نذیر اکبر آبادی؟ جب تک جو ہے ان سبھی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان کے پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ملیح آباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1740 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اچھا جی، تو طلسم زندگی یہ نظم جو ہے یاد رکھیے گا، طلسم زندگی یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ طلسم زندگی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظموں میں ہولی آتا ہے۔ ہولی جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ ہولی یہ ترکیب بند میں ہے۔ تندرستی بھی ان کا مشہور نظم ہے، تندرستی یاد رکھیے گا۔ اور مفلسی
ये तो आपको मालूम ही होगा, मुफलिसी जो मुखम्मस की हैयत में है, ये हमारा दाखिल निसाब नज़्म है। इसके अलावा जो है इनके मशहूर नज़्म है बरसात की बहारें, शहर आशूब, कलजुग का आपने नाम सुना होगा मजनू गोरखपुरी ने, जिसे रूसे के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। इसके अलावा बंजारा नामा भी ये दाखिल निसाब है। इसके अलावा इनके नज़में आइना, दुनिया, दारुल मकाफ़ात, तिलिस्म ज़िंदगी, तवक्कुल, ख्वाब गफलत, असरार कुदरत, खुशामद और तौहीद वग़ैरह इनके मशहूर नज़में हैं। चलिए जी, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है ये बता दीजिएगा आप, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है मशहूर शायर होते हैं उनके असल नाम पूछ लिया जाता है जी। तो याद रखिएगा, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। वली मोहम्मद जो है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम था और ये तखल्लुस नज़ीर करते थे। नज़ीर अकबर आबादी जो है एक अवामी शायर के वजह से मशहूर हुए हैं। ये अवामी शायर कहे जाते हैं, याद रखिएगा। नज़ीर अकबर आबादी जो है ये अवामी शायर के नाम से मशहूर हुए हैं। और नज़ीर अकबर आबादी पर हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाज़ार 1954 ईस्वी में लिखा था। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाके का सफ़रनामा दर्ज झेल शेर पर है? इश्क कोई हमदर्द कहीं मुद्दत में पैदा करता है, को रहें गो नाला बरसूं लेकिन अब फरहाद नहीं है जी। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी मौलाना एहसन मारहरवी। बात करें रशीद अहमद सिद्दीकी की दोस्तों, तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी को जौनपुर में हुई और वफ़ात 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई। गंज हाय गरामा क्या है? तो याद रखिएगा, गंज हाय गरामा ये रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खाकों का मजमुआ है। पहला ये खाकों का मजमुआ है गंज हाय गरामा। याद रखिएगा, गंज हाय गरामा जो है ये 1937 ईस्वी में शाया हुई है। गंज हाय गरामा जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला खाकों का मजमुआ है जो 1937 ईस्वी में शाया हुई है। और आप मुझे बता दीजिएगा, गंज हाय गरामा ये कितने खाकों पर मुश्तमिल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल है जी दोस्तों। तो याद रखेंगे 16 खाकों पर मुश्तमिल है। गंज हाय गरामा 16 खाकों पर मुश्तमिल है। कब शाया हुआ? 1937 ईस्वी में शाया हुआ है। चलिए अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली, फैज़ाबाद, बनारस या फिर लखनऊ? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो हैं दिल्ली में पैदा हुए थे। इनका असल नाम मिर्ज़ा सलामत अली था और ये तखल्लुस दबीर करते थे। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश जो है 1803 ईस्वी को हुई थी दिल्ली में। और ठीक ये जो है अनीस के 1 साल बाद इनकी पैदाइश हुई थी और वफ़ात जो है 1875 ईस्वी को जो है इनकी हुई थी, अनीस के 1 साल बाद। यानी अनीस की पैदाइश 1802 है और वफ़ात जो है 1803 है, 1804 है, 74 है। और दबीर की पैदाइश 1803 है और वफ़ात 1875 है। चलिए जी, दबीर के वालिद का क्या नाम है? तो याद रखेंगे, दबीर के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। याद रखिएगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन इनके वालिद का नाम था। और ये गाना चंगेज़ी के भी वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। याद रखेंगे दोस्तों, मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ने मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस दबीर तजवीज़ किया था। ये भी कहीं पूछ लिया जाता है, कहीं पूछ लिया जाएगा, याद रखेंगे कि किसने दबीर का तखल्लुस मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस दबीर तजवीज़ किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ने। और याद रखिएगा ये भी, ज़मीर जो हैं ये फ़ख्रन, मतलब फ़ख्र से अपने आप को उस्ताद दबीर कहते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जहन में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। हाँ, दबीर का जो है मरसियों का नाम जो है दफ्तर मातम है, मरसियों का मजमुआ है। इसके अलावा जो है इन्होंने मसनवी अहसन क़सस, मसनवी मिराजनामा, मसनवी मुमताज़नामा वगैरह लिखा है। और इनका मशहूर मिसरा है एक मरसिया का, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है।
बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ज़ैल में किसका ताल्लुक़ उसलूबियाती तनक़ीद से नहीं है? जी, तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब पहला हो जाएगा मानियात। मानियात का ताल्लुक़ जो है उसलूबियाती तनक़ीद से नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, मानियात का ताल्लुक़ उसलूबियाती तनक़ीद का ताल्लुक़ जो है उसलूबियाती तनक़ीद का ताल्लुक़ जो है वो मानियात से नहीं है। सूतियात, नहयास, जमलियास जो है उसलूबियाती तनक़ीद का ताल्लुक़ जो है मानियात, सूतियात, नहयास से है, जमालियात से नहीं है। इसका ये मानियात ये गलत हो जाएगा। यहाँ इसका सही जवाब जो है दोस्तों तीसरा होगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो है ना सही जवाब तीसरा होगा, जमालियात। यानी कि जो है मानियात, सूतियात और नहयात ये तीनों का ताल्लुक़ जो है उसलूबियाती तनक़ीद से है, लेकिन जमालियात से नहीं है। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा जी, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। मरजान किस नावल का किरदार है? नावल तौबतुन नसूह, उमराउ जनादा, आग का दरिया या फिर फिरदौसे बरी? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी किन का नावल है? तो याद रखिएगा अब्दुल हलीम शरह का नावल है। 1860 से 1926 वाले का ये नावल है। फिरदौसे बरी 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। इसमें टोटल 9 अबवाब हैं। पहला है परियों का गोल, दूसरा प्यारी ज़ुमरुद तू कहाँ गई, तीसरा मुल्ला आला का सफ़र, चौथा फिरदौसे बरी, पाँचवा फिर वही आलम एनासिर, छठा मरदूद अजली, सातवां बलगान खातून का सफ़र, आठवां इफ़शाए राज और नवा इंतकाम। याद रखेंगे फिरदौसे बरी का सबसे पहला और छोटा बाब परियों का गोल है। सबसे पहला है परियों का गोल और ये सबसे छोटा भी है, और इसका सबसे बड़ा बाब जो है इफ़शाए राज है जो 8वें नंबर पर है। चलिए जी, इसके कुछ किरदार हैं जिनसे अक्सर सवालात बन जाते हैं, जैसे कि हुसैन है, ज़ुमरुद का आशिक होता है। ज़ुमरुद कौन है? तो जिससे हुसैन शादी करता है उसकी महबूबा होती है। इसमें मूसा का भी किरदार आया है जो ज़ुमरुद का भाई होता है। उसके अलावा इमाम नजमुद्दीन, इमाम बिन नसरुद्दीन तोसी, शेख वजूदी, ये भी पूछा गया है शेख वजूदी जो है किस नावल का किरदार है, तो ये भी किरदार मशहूर है, याद रखिएगा। इसके अलावा काजिम जुनूबी, याकूब, शेखुल जब, हसन बिन सब्बा, चुगताई खान, बलगान खातून, मनकू खान, तूबी खान, ये सभी किरदार जो है नावल फिरदौसी बरी में आते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? मजरू सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी, फैज़ अहमद फैज़ या फिराक गोरखपुरी? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी मजरू सुल्तानपुरी। याद रखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने एक चादर मैली सी के इंतसाब में मजरू सुल्तानपुरी के शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है। बात करें नावल एक चादर मैली सी की, तो नावल एक चादर मैली सी 1962 ईस्वी में शाया हुआ है, और ये नावल जो है रिसाला नुकूश में 2 किस्तों में 1960 ईस्वी में शाया हुआ था। किस्तवार ये नावल जो है रिसाला नुकूश में, ये भी पूछा जाता है नावल एक चादर मैली सी जो है ये किस रिसाला में शाया हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों नुकूश में, रिसाला नुकूश है, ये रिसाला है, इसी में ये शाया हुआ था। 1960 ईस्वी में 2 किस्तों में शाया हुआ था किस्तवार, और किताबी शक्ल में 1962 ईस्वी में जो है ये जामिया से शाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी जो है वो शेर है अपना लहू भी सुर्खी शामो सहर में है, तो उसी शेर का जो है मिसरे को जो है इस्तेमाल किया है। और बात करें जो है राजेंद्र सिंह बेदी की, तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात जो है 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। दावा दलील का सवाल है। दावा है नावल उमराव जान अदा उर्दू नावल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है, और दलील है इसमें नावल के बेशतर खूबियाँ और समाजी अक्कासी पाई जाती है। जी, तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। दोस्तों, नावल उमराव जान अदा उर्दू नावल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। इस नावल में
नावल की बेशतर खूबियाँ और समाजी अक्कासी पाई जाती है। नावल एक चादर मलीसी में, नावल उमराव जनादा में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। ज़राफ़त हो या इबादत, उसको ज़िंदगी ही में तलाश करना चाहिए और ज़िंदगी ही से उसकी आबियारी करना चाहिए और ज़िंदगी ही के लिए उसको कारामद बनाना चाहिए। यह इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के किस इंशाइया से माखूज़ है? अरहर का खेत, आमद में आवर्द, पासबां या फिर अपनी याद में? जी, तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा अपनी याद में। अपनी याद में जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन है, मज़ामीन रशीद, उसी में ये शामिल है। मज़ामीन रशीद जो है टोटल 20 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। सरगुज़श्त पहला हो जाएगा, उसके बाद अहदे गुल हाजी साहब, मौलाना सुहेल धोबी, वकील साहब अपनी याद में 7वें नंबर पे है। चार पाई, अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आत, माता बदल, अरहर का खेत भी याद रखिएगा, ये मज़ामीन रशीद ही में शामिल है। कारवां बेदास्त, गहाग, आमद में अबुर्द, मुगालता, मुर्शिद, मसल्लस, कुछ का कुछ और सलाम हो नजत पर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। देख रहे हैं नैन, इनमें से किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर या फिर आगा हश्र? जी, तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा हमारा हबीब तनवीर। बात करें हबीब तनवीर के बारे में तो इनकी पैदाइश 1923 ईस्वी को रायपुर में हुई है और वफ़ात 2009 ईस्वी को भोपाल में हुई है। हबीब तनवीर का दाखिले नसाब कौन सा ड्रामा है? तो याद रखिएगा आगरा बाज़ार है, जिसे इन्होंने नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर लिखा था। आगरा बाज़ार जो है 1954 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से में ये खेला गया था। ये जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पहली बार जो है ये खेला गया था ये ड्रामा आगरा बाज़ार को। और हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाज़ार का इंतसाब जो है आदमी के नाम किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हबीब तनवीर के कुछ मशहूर ड्रामे हैं जिनसे अक्सर सवालात बन जाते हैं, तो आप इनके यहाँ ड्रामे देख सकते हैं, जैसे कि चरणदास चोर हो गया इनका ड्रामा। उसके अलावा शतरंज के मोरे, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी मशहूर है इनका ड्रामा। जहरीली हवा, मेरे बाद, शतरंज की बाजी, झाड़ू इनका अक्सर जो है ज़ुमरे में जो है सवाल बन जाता है झाड़ू से। उसके अलावा जो है जालीदार पर्दे, देख रहे हैं नैन बहुत मशहूर है इनका ड्रामा है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। राजा चंपा और चार भाई, किसका पुत्र, इंद्र, लोकसभा, जामेदार वगैरह हैं। पर्दा खुलता है इनका खुद नविश्त है। सवाल नंबर 15 देखिएगा। दर्ज झेल मिसरों में से सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा, कहीं ऐसा होना, कहीं गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, ऐसा होना चाहिए। क्यों यहाँ लिखा है क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल। जी, तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी इंसान हो प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। क्यों ही होगा, याद रखिएगा। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब का यह शेर है। गालिब की पैदाइश तो आप लोगों को मालूम होगा 1797 ईस्वी को ही, और वफ़ात जो है 1869 ईस्वी को दिल्ली में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। नावल के ज़्यादातर किरदार ख्वाबों की दुनिया के रहने वाले और मिसालियत पसंद मालूम होते हैं और आलम शबाब की बद किरदारी में मुब्तला हैं, मगर अपनी मादरे वतन की हालत से फ़िक्रमंद हैं। जब उनके खेमा के लिए नफ़रत का जज्बा उनमें जाग उठता है। नावल के लिए फ़न में एक से कई नए लिखने वाले मुतासिर हुए। नावल लंदन की एक रात के बारे में यह ख्याल किस नाक़िद के कलम का मरहून मिन्नत है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन, 1912 से 1972 वाले का ये ख्याल है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 दोस्तों, मसूद हसन ख़ान को किस किताब पर PhD की डिग्री दी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। बात करें मसूद हसन ख़ान के बारे में तो याद रखिएगा मसूद हसन ख़ान की पैदाइश 1919 ईस्वी को कायमगंज फ़र्रुखाबाद में हुई है और वफ़ात 2010 ईस्वी को
फर्रुखाबाद ही में हुई है। मसूद हसन खान ने MA और PhD की डिग्री जो है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू लिखकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। याद रखिएगा, हैदराबाद के क़याम के दौरान जो है इन्होंने क़दीम उर्दू के नाम से एक तहक़ीक़ी जरीदा भी जारी किया था। क़दीम उर्दू के नाम से इन्होंने एक तहक़ीक़ी जरीदा जारी किया था। कहाँ से? तो जब वो हैदराबाद में थे तब। मसूद हसन का मशहूर कौल है, लिसानियात का अटल उसूल ये है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। ये मसूद हसन खान का बहुत मशहूर कौल है, याद रखिएगा। लिसानियात का अटल उसूल ये है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती, बकौल मसूद हसन खान। मसूद हसन खान का एक और कौल है मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान के ताल्लुक़ से कि गोदान का उर्दू नावल निगारी की तारीख़ में कोई मकाम नहीं है। याद रखिएगा, गोदान के ताल्लुक़ से इनका कौल है मसूद हसन खान का कि गोदान का उर्दू नावल निगारी की तारीख़ में कोई मकाम नहीं है, बकौल मसूद हसन खान। एक और कौल है इनका, बहुत ही मशहूर है, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश से निकली है। ये कौल भी जो है मसूद हसन खान साहब की है। एक और इनका मशहूर कौल है, सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो नवा उर्दू की जाए पैदाइश है। तो बहुत मशहूर कौल है, सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो नवा उर्दू की जाए पैदाइश है, बकौल मसूद हसन खान। इसके अलावा जो है क़िस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर, बिकट कहानी, आशूरा नामा और मसनवी कदम राव पदम राव को इन्होंने मुरतब किया है। याद रखेंगे, क़िस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर, बिकट कहानी, आशूरा नामा और मसनवी कदम राव पदम राव को इन्होंने मुरतब किया है। इनकी अहम तसानीफ़ के बारे में बात करें साथियों, तो रूप बंगाल इनका पहला शेरी मजमुआ है और मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान 1948 से मंजर आम पर आई है। इसका डेट भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू जो है मसूद हसन खान की बहुत अहम तख्लीक़ है। इसके अलावा उर्दू कालमिया इनकी किताब का नाम है जो 1973 से मंजर आम पर आया। उसके अलावा उर्दू ज़बान और अदब ये भी बहुत अहम किताब है मसूद हसन खान की। उसके अलावा दोस्तों इनका दाखिल नसब खुद नविश्त है, वरूद मसूद, जो 1989 से मंजर आम पर आया, पहली बार शाया हुआ था और दूसरी बार जो है 2019 में शाया हुआ। 2 बार शाया हुआ है इनका खुद नविश्त, पहली बार 1989 में और दूसरी बार 2019 ईस्वी में शाया हुआ। याद रखिएगा, वरूद मसूद के पहले बाब में जो है पहली बार जो शाया हुआ था उसमें 17 अबवाब थे और जो दूसरी बार 2019 में शाया हुआ था उसमें 18। अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खुसूसियत एतदाल है और वह न बिजनौरी की तरह गालिब को आसमान पर बिठा देते हैं, न लतीफ़ की तरह उन पर गैर हम आहंगी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने गालिब की जो खुसूसियात गिनाई हैं वो सब अपनी जगह सही हैं। आले अहमद सुरूर के इस बयान में किस नाक़िद की तनकीद की तरफ इशारा है? इम्तियाज़ अली अरशी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर अल्लामा शिबली नोमानी? जी, तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, 1837 से 1914 वाले। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 19 की तरफ। इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? आफ्ताब मोहब्बत, फुटपाथ के शहज़ादे, मोर पंखी या फिर पैसा और परछाई? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 19 का हमारा सही जवाब हो जाएगा आफ्ताब मोहब्बत। आफ्ताब मोहब्बत ये किनका है? तो याद रखेंगे आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। आगा हशर कश्मीरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो आगा हशर कश्मीरी की पैदाइश जो है 1879 ईस्वी को हुई है। 1879 ईस्वी को जो है बनारस में हुई है और वफ़ात जो है 1935 ईस्वी को लाहौर में हुई है। इसके अलावा फुटपाथ के शहज़ादे, मोर पंखी और पैसा और परछाई ये मोहम्मद हसन का ड्रामे हैं। मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है 2010 ईस्वी को। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक़ कार इनमें से कौन हैं? अल्लामा इकबाल, हाली, फैज़ या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। फैज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को सियालकोट में हुई है और वफ़ात 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई है। इनके वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान था। फैज़ अपनी बीवी एलिस जॉर्ज को मुसलमान बनाकर कुलसुम नाम इन्होंने रखा था। याद रखिएगा, फैज़ अहमद फैज़ ने माहनामा अदब लतीफ़, पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ की इदारत इन्होंने संभाली थी और फैज़ अहमद फैज़ अखबार लोटस के मुदीर भी रहे हैं।
फैज़ अहमद फैज़ 1951 ईस्वी में लियाकत अली ख़ान के तख्ता पलटने के जुर्म में गिरफ़्तार भी हुए थे और ये रावलपिंडी साजिश पर इनको जो है इन पर मुकदमा भी चलाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ ने मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र भी किया है 1964 जैसे कि इंग्लिस्तान, रूस, अल्जीरिया, मिस्र, लिबनान और हंगरी वगैरह का। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं, आप लोगों को मालूम होगा। इनके मजमूए से अक्सर जो है सवाल बन जाते हैं ज़मानी तरतीब का। तो पहला है इनका नक्श फ़रियादी 1941 ईस्वी में शाया हुआ है, नक्श फ़रियादी। और याद रखिएगा दोस्तों, नक्श फ़रियादी का इनका पहले शेरी मजमूआ का नक्श फ़रियादी का मुकदमा जो है नून मीम राशिद ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला इनका शेरी मजमूआ नक्श फ़रियादी का मुकदमा नून मीम राशिद ने लिखा है। बात करें इनका दूसरा शेरी मजमूआ तो दस्ते सबा है जो 1952 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। तीसरा इनका कौन सा है तो जिंदा नामा है, 1956 ईस्वी में मंजर आम पर आया। चौथा इनका दस्त तहसंग है जो 1956 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। और पांचवा इनका सरवादी सेना जो 71 ईस्वी में मंजर आम पर आया था 1971 ईस्वी में। छठा इनका शाम शहरियारा जो 1978 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और सातवां इनका मजमुआ जो है मेरे दिल मेरे मुसाफिर जो 1981 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इसको मैं ज़मानी तरतीब से याद रखने का तरीक़ा बताया था, नक 10 जिन 10 सर शाम। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इनके दाखिले नसाब नज़मों के बारे में। तो तन्हाई इनका दाखिले नसाब नज़्म है जो मुअर्रा की हैयत में है और ये पहला मजमुआ इनका शेरी मजमुआ नक्श फ़रियादी 1941 में शामिल है जिसका मुकदमा नून मीम राशिद ने लिखा था। और इनका दूसरा नज़्म मुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये भी इनका दाखिले नसाब नज़्म है। और याद रखिएगा, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग ये फैज़ अहमद फैज़ का एक आज़ाद नज़्म है और ये भी इनका पहले शेरी मजमुआ नक्श फ़रियादी में ही शामिल है। सुबह आज़ादी इनका तीसरा नज़्म है जो दाखिले नसाब है। सुबह आज़ादी ये भी एक मुअर्रा नज़्म है और ये दस्ते सबा में शामिल है। याद रखिएगा, दस्ते सबा इनका दूसरा शेरी मजमुआ दस्ते सबा में सुबह आज़ादी शामिल है। इसके अलावा जो है इनके मशहूर नज़मों के बारे में बात करें तो मेरे नदीम, सुरूद शबाना, मासूम क़ातिल, दो इश्क, क़ैद, तन्हाई, तह नजूम, दरीचा, याद, ज़िंदगी की एक शाम, इंतज़ार, कुत्ते बहुत मशहूर है, अक्सर जो है ज़ुमरे में इससे सवाल बन जाते हैं। इसके अलावा रक़ीब से, एक मंज़र, हम लोग, बोल और मुलाकात वग़ैरह इनके मशहूर नज़में हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।